मैं बताना चाहूँगा, इनका नाम है डॉक्टर अतिंदर पाल सिंह। ये जो हमारे आज के गेस्ट हैं, ये एमबीए पीएचडी हैं और आजकल प्रोफेसर हैं एपीजे स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। तो ये बहुत सारी कंपनियों के साथ काम कर चुके हैं। इनको 20 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इन्होंने जौन सी कंपनियों में काम किया है उनमें जैसे इन्फिनिटी है, कॉटेज एम्पोरियम है, भेल है, कथा है, कोटक महिंद्रा है, हनीवेल है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है। तो अपार अनुभव है इनके पास। मैं तो ये चाहूँगा कि ये आएँ और बोलें, और आप इनके साथ अगर आपको कुछ शेयर करना हो तो वो ज़रूर करें, अपनी क्वेश्चन ज़रूर पूछें। उसके लिए ये है, एक तो आप लैंडस्केप मोड में चले जाएँ और आप वीडियो ऑन मत करें, पहले आप इनको बोलने दें। तो जब ये बोल लें तो आपने अपना एक उसमें हैंड रेस का ऑप्शन होता है, आप हैंड रेस का ऑप्शन करें चैट में। अगर आप अलाउड हैं लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। प्रश्न उत्तर आपके सब दिए जाएंगे। अगर इस कार्यक्रम में पूरे नहीं हो पाते हैं तो आप व्यक्तिगत नंबर लेकर भी आप बाद में पूछ सकते हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर रतिंदर पाल सिंह जी को। तो स्वागत है, और रतिंदर पाल सिंह जी से कहूंगा कि आगे का संचालन वो करें। Thank you, Indrajit Vijay. A very good evening to everyone. शुरुआत हम लोग कर ही रहे हैं, तो let me start share my screen with everyone. आप एक बार जरा चैट में बता दें कि आपको स्क्रीन विजिबल है, whether you are able to see the screen or not. So that would be great, so that I should be able to see that. Okay, thank you. So आप लोगों ने साइंस का सेशन भी देख लिया है, आप लोगों ने कॉमर्स का सेशन भी ले लिया है। सो द प्रीवियस स्पीकर्स जिनको मैं सक्सीड कर रहा हूँ, प्रीसीडिंग स्पीकर्स, चाहे वो जीतवीर जी रहे हों या हरमन एंड दलवीर जी रहे हों, सो वी ऑल बिलोंग टू अ लिटिल बिट अबाउट बिफोर आई स्टार्ट, वी आर एट द्वारका न्यू दिल्ली। तो हम एक छोटी से हमारा प्रयास है, there's what we are doing. There's something we call Youth Sangha, which happens at Gurdwara every third Saturday. We meet and we do sessions. So we have done numerous sessions. So one is on the life and one is on the skill. So that is what is happening. So today's topic, which I'm doing currently, is careers in humanity. So what I would request everyone is that how many people who are in this meeting room at this moment who have not thought of a career, कि उनको क्या लगता है कि उनका करियर उनके लिए डिसीजन अभी उन्होंने ले लिया है, लेना है, या ह्यूमैनिटीज की उनकी जिंदगी में कोई जगह है कि नहीं। So I request everyone to please, if you could put chat on the chat, that whether just say yes or no. If you have taken the decision that what kind of career you have already chosen, just write yes. If you are a little confused, you're still thinking about it, so you are also more than welcome to share. So I request everyone. Okay, there's one yes chosen, Rach Ji. So I hope I am kind of recognizing everybody's name by their, like for example, there's a Galaxy tab, so I have to say Galaxy tab. So I would request everyone कि वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ना राइट हैंड साइड पे एक ब्लू बटन है और 3 बटन्स हैं, मोर लिखा होगा, उसमें जाएं और अपने आप का अपना नाम बदल लें तो और भी अच्छा होगा. So it will be able, you'll be able to do that, and that will make our life easier to recognize you. So good, I've got some answers here. So we'll try to see that one thing is there कि कुछ लोगों ने जैसे हैंड स्क्रीन है, so I won't be, because there are many people at this moment. There are around how many participants have joined in. There are multiple participants have joined in, so it would be very difficult for me to look at the raised hands. So anything you want, you can put it on the chat window. So let's start
with what kind of opportunities are there when it comes to careers in humanities. So let's look at. I got. Okay. So Sandal Simran, if you have raised hand, so I will not be able to use that. You can put it any questions you have. You can put it in the chat box. Yes. So what careers I am going to talk about today? So I'm going to talk about law as a career, UPSC, that is the bureaucracy, IAS, IPS examinations. We'll talk about that. We'll talk about media. What kind of careers are there in media, journalism, and all that. We'll talk about fashion design, and we'll talk about there are numerous other careers which are available to us. We'll talk about those also, right? So yes, we will talk about that. So let's look at, we'll start with law. Okay. And we'll keep on chatting with each other and see that how it goes. So law is what? Nothing. It is legal studies. So if you look at what kind of opportunities are there in law. So what is, you can look at, this is the first one, is known as corporate law. So जो कंपनियों में lawyer होते हैं, कंपनियों के अलग-अलग, there are multiple things. At times companies break rules, at times new rules come. They have to follow those laws. So that is something which is corporate law. Then there is something known as legal process outsourcing. आप लोगों ने सुना होगा something known as BPO. वो business process outsourcing होता है, call centers है हमारे यहाँ. तो हमारे यहाँ अब law legal process outsourcing भी है, which talks about कि लोग अगर US हमारे law की similarities भी हैं कई constitutions के साथ, तो वो बार वाली countries हमारे यहाँ इंडिया में काम भेजती हैं, तो वो lawyers करते हैं उस काम को. Then research and academics, आप law पढ़ा भी सकते हैं, law के बारे में research भी कर सकते हैं. There is business law. सबसे बड़ा जो काम है जो वकील करते हैं वो है litigation का. So litigation is that when you become an advocate, जो आप केस लड़ाई करते हैं, केसों के बारे में आपने सुना होगा कि जी वकील साहब केस लड़ रहे हैं कोर्ट में. So that is what litigation is. Then there are law firms. You can create law, you can work for law firms जहाँ पर बड़ी law firms हैं और वो क्या करती हैं, मिलके बहुत सारे lawyers उनके यहाँ employ करते हैं और उनको they work there. Then we have just a sec. We have social advocacy. So what happened is, for example, there are NGOs, public interest litigations are there. So un sabko this social advocacy handles. And last one is judiciary. So judiciary is, आपने सुना होगा जज बनते हैं, तो जज बनने के लिए हमारे को लॉ हमारे को पढ़ना जरूरी है. सो लॉ हैपन्स. सो लॉ के एग्जाम्स के लिए हमारे यहाँ स्टेट लेवल के ऊपर ऑल्दो काम चल रहा है कि इंडियन लेवल के ऊपर जुडिशरी सर्विसेज बन जाएं, लेकिन इस समय अभी स्टेट लेवल के ऊपर जुडिशरी सर्विसेज हैं. सो स्टेट लेवल जुडिशरी सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, हमारे दिल्ली में भी होते हैं. And then there are exams as per wherever you are sitting in any country, any place in India as well as abroad, judiciary के exam होते हैं. वहाँ पर उसके हिसाब से आप जो lower court में you become the judge, and so that is one of the, if you look at when it comes to law, so there are multiple opportunities which are there in the law. So law, अब जो अगर हमने देख लिया कि ये अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, तो ये लॉ में आपको जाना कैसे है लॉ में. सो हमारे पर किस तरह के प्रोग्राम है. हम 5 साल का इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिसमें हमें BA LLB मिल जाता है, BBA LLB मिल जाता है, BCom LLB मिल जाता है, या BSc LLB मिल जाता है. सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह के सब्जेक्ट अपने पहले 2 साल में पढ़ेंगे. सो उसके हिसाब से आपको आपकी डिग्री मिल जाएगी, लेकिन LLB remains the same. So that is what happens after +2.
5 years integrated program that is there. 3 साल का भी लॉ अवेलेबल है, अगर आप लोगों ने सुना होगा। तो ये ग्रेजुएशन के बाद हम कर सकते हैं। जैसे जितनी भी इंडिया की यूनिवर्सिटीज हैं, सबके पास LLB प्रोग्राम कहते हैं, जिसे बैचलर ऑफ लॉ। सो उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव, अमृतसर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इंदौर यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी। सो देयर आर every university in the country have a law program. तो आप वहां से लॉ कर सकते हैं। So I'll keep on looking at the chat if any questions are also there, right? Okay. Prominent law institutions कौन से हैं? Most of the NLUs are the prominent law universities. There is NLSIU Bangalore, Nalsar Hyderabad, Bhopal, NLU Jodhpur, NLU Delhi, which is in Dwarka itself. So that is there. तो क्लैट का एग्जामिनेशन होता है, यूनिवर्सिटीज, लॉ यूनिवर्सिटीज मिलके NLUs कराती हैं। 12वीं होनी चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलती है दिसंबर में, और यूजुअली एग्जाम होता है मई में। लेकिन इस बार बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड, एग्जाम 21 जून को क्लैट का एग्जाम है। तो आप में से कुछ लोगों ने शायद भरा भी होगा। सो अप्रोक्सीमेटली 45,000 लोग अप्लाई करते हैं, 2300 के करीब सीट्स हैं। So this is what you can go on clat.ac.in to look at the CLAT examination also. Eligibility क्या है? Okay. ये ना मेरा सबसे, अगर हर बार जब भी अगर मैं बच्चों के साथ मिलता हूँ, बड़ों के साथ भी मिलता हूँ, सो एक मेरा सवाल मेरा हमेशा ही रहता है सबसे, राइट? सो मैंने आपकी स्क्रीन ब्लैंक कर दी है इसलिए, ताकि आप स्क्रीन की जगह मेरी आवाज पे ध्यान दें और जरा चैट बॉक्स में लिखें कि आपके अपने प्रीवियस एग्जाम में, जो भी आपने आज तक लास्ट एग्जाम दिया था, उसमें आपके मार्क्स कितने आए थे। So if I could look at the chat, please. I'll take a 1 minute. So Sandal Simran, she said, he or she said 85, 93. Okay. '88, Rachna. I can't see your faces, so I'm saying that. Okay. तो Vivo 1907, आपके 11th या 10th में कितने मार्क्स आए थे? What was your score? Harshdeep 80, okay. 75, all right. अभी तो 5-7 लोगों ने लिखा, I want everyone to write. तभी पता लगेगा कि आप लोग you are listening to the session or not. Otherwise I'll keep calling, जैसे हम लोग क्लास में करते हैं. So Arshpreet, Realme, Arashpreet, Gurdeep, Guneet, Galaxy Tab A, Harpreet, Prableen, Jeenu, Amandeep, Jasleen, Brijinder, Harshdeep, everyone. जिन्होंने हैंड रेज किए हैं वो चैट में लिखें जो भी करना। तो जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, सो स्वामिल आपने 10th के एग्जाम दिए हैं, 9th में कितने % मार्क्स थे? ज्योति 60, ऑलराइट। हर्षदीप 78, नो, जो लास्ट एग्जाम है। और अगर बड़े लोग हैं जो एज में थोड़े अगर 20-21 साल से ऊपर वाले हैं, अगर वो भी लिखना चाहें, दे आर ऑल्सो मोर देन वेलकम टू राइट देयर मार्क्स। बट बताएंगे नहीं हम किसी को कि कितने मार्क्स आपके आए थे, सिर्फ इसी मीटिंग में रहेगा ये।
89. Okay. So I think I got enough responses. So let me go back and why I was asking. जहां भी मैं जाता हूं हर जगह मेरे से पहले साइंस वाले बोल के गए होते हैं, कॉमर्स वाले बोल के गए होते हैं, तो हर कोई चाहता है, सी there's nothing wrong in it, everybody wants their every parents want that आपके एग्जाम अच्छे आए. इशू क्या है कि हमारे यहाँ इंडिया में एग्जाम्स की जो एग्जाम है या मार्क्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस बहुत है. सो नो मैटर व्हाट आपके एग्जाम्स का जो रिजल्ट है जिंदगी में काफी दूर तक आपके साथ चलता है. लेकिन फिर भी मेरा यहाँ पर एक सवाल है, मैंने कभी किसी को ये नहीं बोल रहा कि आपके 98 परसेंटाइल आने चाहिए या 99% आने चाहिए, 90% आने चाहिए. डीयू में तो ये हाल है, हमने देख भी लिया कि आपके 90 से नीचे एग्जाम है, रादर 95 से नीचे आपका स्कोर है तो दिल्ली कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिल रहे. एंड पीपल हु आर आउटसाइड दिल्ली जो कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, so you guys are lucky, so you don't have that kind of struggle for admissions as we have in Delhi. So my question, the reason why I was asking, I never said anybody that you take 100% marks and 98% marks and 95% marks. I want everyone to score, and please don't let your jaw drop, at least 50% marks everywhere. What is the reason why that? If you look at this, the reason for asking you to score at least 50% marks is क्योंकि हर जगह की eligibility 50% marks है. So whether it is availability or whether it is not, it is entirely important that you score at least 50% marks. For some it looks easy, but then there are people who may not score 50%. And when I say 50%, it's both in 12th as well as in graduation, and also it is in post graduation. So eligibility is 10 plus 2 and not completed 20 years as of 1st of July, provided there is a relaxation when it comes to scheduled castes and scheduled tribes. Maximum age limit shall be 22 years. So that is what happens with the law. Why law? If you want to understand the legal systems, if you have the ability to, अगर आप समाज बदलना चाह रहे हैं, अगर आप लॉजिकल थिंकर हैं, ब्रिलियंट माइंड है, अच्छे पैसे बना लेते हैं लॉयर्स. Changing environment है, global perspective है. So law is, I personally feel, is a good career to have. So that is where. So before I go to, this is a logical break here. Before I go to some other places, some other next one. Any questions we have in the law that which we want to answer? Okay. Yes, I got a question. The question is, I want to ask, is there any benefit of doing LLB from NLU? Then yes, definitely. See, if you could get into an NLU, I would suggest that you must. अगर आप सी, इट्स यूजुअली वो इकोसिस्टम की तरह है. NLU टॉप्स पे हैं और उसके बाद आपके सरकारी दूसरे कॉलेजेस आ जाएंगे और उसके बाद आपके पास then you get the other universities or colleges. National is they are the institutes of repute, and it's like कि आप अपने पड़ोस वाले कॉलेज से MBA करना चाहते हैं या किसी हाईली रैंक्ड कॉलेज से आप MBA करना चाहते हैं, तो दोनों में फर्क तो है ही है. So that is what my take is. Any other question? If I look at in the chat, okay, that's it, right? Okay. Definitely, see, there's a question that is coming. My brother is doing BCom from IGNOU. So see, we are not talking of commerce here, but I personally feel, unless why would you not do to a college? So regular college में
के अपने ही फायदे हैं, और रेगुलर कॉलेज में आप जब जाते हैं पीयर ग्रुप लर्निंग होती है जो कि घर बैठ के कई बार नहीं हो पाती. So let's move on to the second one, that is fashion and design. This is another career I really like. Lot many times we have this career. क्या क्या career options है हमारे पास fashion and design में? We can become designer, we can become the stylist, we'll become the product development, we can do professional development, we can become fashion entrepreneurs. There's a merchandiser, you can become sales and marketing professional, consultant, see a computer design designer, रिटेल बायर, रिटेल मैनेजर, विजुअल मर्चेंडाइजर. आपने देखा होगा जो स्टोर्स हैं बड़े सुंदर सुंदर दिखते हैं आजकल. दिस इज द जॉब ऑफ अ विजुअल मर्चेंडाइजर. आर्ट डायरेक्टर्स, फैशन एंड आर्ट क्यूरेटर्स. सो इस तरह के करियर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं व्हेन इट कम्स टू द fashion and design. So I feel that it is a very upcoming career, and it can, lot of fashion designer, fashion people we have seen, and they make ton loads of money. So that is a good career option. तो अगर आपको फैशन पसंद है तो हम फैशन की तरफ भी जा सकते हैं. एक अच्छा करियर हमारे पास बनता है. डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया की रिप्यूट के. हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं फैशन टेक्नोलॉजी को लेके. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन्स हैं. पर्ल एकेडमी अच्छा काम कर रही है, थोड़ा एक्सपेंसिव है. संस्कृति स्कूल है. इंटरनेशनल वुमेन पॉलिटेक्निक है. FDDIs हैं. ऑल दीज आर देयर. जस्ट गाइस गिव मी अ now we'll take the questions regarding fashion later. Now comes, this is again a very, very important career. There are many 80-90 percentile kids here in the session today. So what I feel is that you must look at civil services examination. So IAS examinations आपने सुने होंगे, तो that is what civil services are. One of the prestigious services is Indian Administrative Services. तो इनको थोड़ा ध्यान से देखते हैं. So 23 services हैं जो हमारे को ऑफर होती हैं civil services में around. So look at this, how important this is, how many people aspire to be a civil servant. 10 लाख लोग हर साल एनरोल करते हैं. बिकॉज क्योंकि हर एक चांसेस लिमिटेड है, तो आधे ही कुछ अपियर देते हैं. जिनको तैयारी नहीं होती वो नहीं अपियर करते. यूजुअली प्रीलिम्स एग्जाम है वो एक जून में होता है. सो एंड मेंस होता है अक्टूबर नवंबर में. अगर हम देखें तो इस बार 21 ऑफ मई को डेट आ जाएगी, क्योंकि इस बार कोविड को लेके प्रीलिम एग्जाम पोस्ट हो गया. तो 21 मई को दे आर गोइंग टू डिसाइड दैट व्हेन इज गोइंग टू बी द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर भी देखें. एलिजिबिलिटी आपको IAS बनने के लिए आपको कुछ नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी डिग्रीज कोई नहीं चाहिए. आपको सिर्फ एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए. किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप एक IAS ऑफिसर बन सकते हैं. So that is my take, which can happen. एज लिमिट क्या है? The minimum age limit is 21 साल as on 1st August of that year. Upper age जनरल कैटेगरी के लिए 32 है, OBC के लिए 35 है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 37 है. Usually what happens is, last I checked, जनरल कैटेगरी को 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, OBC को 9, एंड शेड्यूल कास्ट टिल द एज ऑफ 37 जितने मर्जी एग्जाम वो चाहें उतने वो लोग दे सकते हैं. So that is the age limit and attempts which are there, which is part of this. अब हम देखते हैं कि जो किस तरह के लोग, अगर हम सिविल सर्विसेज एग्जाम को देखते हैं तो ह्यूमैनिटीज को लेके जब IAS मेंस की बात आती है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन, हिस्ट्री अराउंड 3000 लोग लेते हैं, जियोग्राफी 3000, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3000, सोशियोलॉजी. तो अगर हम देखें तो 4 जो मोस्ट फेवरेट
जो लोगों के चुनाव है, चुनाव के सब्जेक्ट्स हैं, वो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी। लेस देन अराउंड 2000 लोग फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, all other science art subjects around 1000, all literature subjects around 1000, so around 15000 लोग जो कि बैठते हैं मेंस में. So this is a kind of a bifurcation of the kind of subjects they choose. So अगर हम देखते हैं IAS की, IAS एग्जाम की, तो आपके पास these are the subjects, and humanities के जो subjects हैं, they are the one which are supreme, which are most liked by the people who are the civil servants or who are aspiring to be a civil servant. So मैंने आपको बोला कि 23 तरह की सर्विसेज होती हैं. तो अगर हम देखें, किसी जमाने में अगर आप अपने पापा से पूछें या दादाजी के टाइम पे, IFS was one of the most coveted service, but currently Indian administrative services are the most important services. IFS, IPS, then PNT, accounts and financial, then audit and accounts, in IRS, that is customs and central excise, defense, Indian revenue services, ordinance, and then these are the group A. So these are 3 prime services, and then there are group services. And then we have group B services also, armed force headquarters, then DANEX is there, that is group B, police as well as civil services, Pondicherry police services and all that. So in total, if you look at 14 these and 9 these are the services which are available to us when it comes to the IAS examination. IAS के लिए again civil services के लिए आपको सिर्फ एक graduation की जरूरत है और आपको subjects अपने prepare करने हैं. This brings us to, so we have covered till now the career of law, we talked about fashion, we talked about civil services. Now let's look at advertising, journalism and media studies. Again, काफी fashion में है, काफी hot है, अच्छा career है, creative है. We'll look at all the various options which are available. So क्या कर सकते हैं? जैसे advertising है, अगर एड में जो बंदा एड लिखता है उसके जो डायलॉग्स होते हैं, कौन क्या यूज किया जाएगा, उसमें टेक्स्ट यूज किया जाएगा, उसे हम कॉपीराइटर कहते हैं. जैसे अगर हम इस एड में देखें तो जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, दैट इज डन बाय अ कॉपीराइटर. देन एक विजुअलाइजर होता है और आर्ट डायरेक्टर होता है. आर्ट डायरेक्टर ये कौन होते हैं? जो कि लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं विजुअल्स को लेके. सो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, just a sec, कि अगर यहाँ पर ये पिक्चर आ रही है, that is done by the art director as well as the visualizer. What kind of picture would be there? Less is more, we call it in advertising. देखिए एक और पिक्चर है जैसे. Then strategic planner, account planner होते हैं जो कंज्यूमर को जानते हैं और ब्रांड किस तरह से कम्युनिकेट करेगा, ये वो लोग काम करते हैं एडवर्टाइजिंग में. अब मैंने ऐड बना ली, अब ऐड को कहाँ अपने बजट में किस मीडिया में डालना है, मैंने टीवी में डालना है, मैंने वेबसाइट पे देना है, ये सारा काम लोग करते हैं, उन्हें हम मीडिया प्लानर्स बोलते हैं. इस मीडिया को खरीदने का जो काम करते हैं हम उन्हें मीडिया बायर्स बोलते हैं. आपकी ब्रांड कैसा होगा, किस तरह से प्रमोट होगा, उन सारों को ध्यान रखने के लिए हमारे पास ब्रांड मैनेजर्स होते हैं. तो वी डू take up this. अकाउंट मैनेजर होता है जो कि क्लाइंट के अकाउंट का ध्यान रखता है. हर जगह आजकल अकाउंट मैनेजर होने लगे हैं. पहले किसी जमाने में सिर्फ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में ही हुआ करते थे, तो आजकल काफी जगह है. सो अकाउंट मैनेजर्स आर देयर. डिजाइनर, स्ट्रेटेजिक डिजाइनर हैं जो कि विजुअल आइडेंटिटी है, कैसी दिखेगा आपका ब्रांड, उसके पीछे कैसा रहेगा, वो सारी आइडेंटिटी, पैकेजिंग कैसी होगी, ये सारा विजुअल स्ट्रेटेजिक डिजाइनर्स करते हैं. इवेंट मैनेजमेंट काफी हॉट हो रहा है, तो आप माइस कहते हैं. तो क्रिएशन और डेवलपमेंट ऑफ इवेंट्स हैं, वर्कशॉप, सेमिनार, डीलर मीट्स, रोड शोज, ब्यूटी पेजेंट्स, स्पोर्ट्स. IPL is an event, so that happens. Arijit's concert is an event, so that happens. आउट ऑफ होम, घर के बाहर जब आप एड देखते हो तो उसे हम आउट ऑफ होम कहते हैं. There are agencies which hire for these.
अगर आप देखें घर के बाद मेट्रो के ऊपर। देन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि 70% of India lives in rural, so we have rural communication, vernacular communication है, हिंदी पंजाबी local languages को देख के उसे हम कहते हैं। Then there is something known as direct marketing also. Direct marketing में हम जब घरों में जा के लोगों के साथ सामान बेचने की कोशिश करते हैं तो direct marketing है। रिलेशनशिप मार्केटिंग काफी चल रहा है, CRM है, आजकल सॉफ्टवेयर बेस्ड काफी है, तो दैट काइंड ऑफ करियर इज आल्सो देयर। PR, जब भी हमारी एड या हमारे बारे में लोग बात करते हैं और हमने उसमें वहां पर पैसे नहीं दिए हुए, because of our relationship when people are talking, that is known as public relationship and corporate communications। तो यहाँ पर हम टीवी में, प्रेस में जब आते हैं, आपके बारे में आर्टिकल्स आते हैं, वेबसाइट्स लिखती हैं, ब्लॉगर्स लिखते हैं, तो हम उसे PR कहते हैं। सेलिब्रिटी मैनेजमेंट है, लोगों के अपने मैनेजर्स हैं, सो दैट इज सेलिब्रिटी फर्म्स आर देयर। एंटरटेनमेंट मार्केटिंग है, आजकल काफी चल रहा है, आपने देखा होगा इन फिल्म एडवर्टाइजिंग होती है, शोज में, बिग बॉस के शोज में ब्रांड आते हैं, तो सारा कुछ इसमें हमारा आ रहा है। हेल्थ केयर के लिए हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, सो दैट इज हेल्थ केयर कम्युनिकेशन। तो अलग तरह की एडवर्टाइजिंग है, क्योंकि एक्चुअल में हम दवाइयों की एड नहीं दे सकते हैं, डॉक्टर्स खुद एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, तो हेल्थ केयर कम्युनिकेशन इज देयर। फिल्म प्रोडक्शन है, that is another career which is there, different kind of films, you're producing films। digital processing है, print production है, that is there। digital marketing अपने आप में ये बहुत बड़ा हो गया है, billions of dollars are put in the advertising spends in the social media nowadays। तो अगर आपको सोशल मीडिया में आज, अगर आपको सिर्फ फेसबुक में ऐड कैसे रन होती है, अगर आप वही सीख जाते हैं, तो 25-30 हजार रुपए की आपकी नौकरी कहीं नहीं गई है। यू कैन स्टार्ट विद दैट काइंड ऑफ सैलरीज एनी डे। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑनलाइन मार्केटिंग में कुछ लिखे। आज SEO जिसको आता है, वो अपने आप में करियर बन गया है, मोबाइल करियर बन गया है, सोशल मीडिया, वेब, इंटरनेट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग अपने आप में करियर बन गया है, ब्लॉगिंग अपने आप में करियर बन गया है, एफिलिएट मार्केटिंग अपने आप में इस समय एक करियर बन गया है। ऑडियंस मार्केटिंग में यहाँ पर आप एक स्पेस सेलिंग है, अगर आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया का पेज है, यहाँ पर ये एड लगी हुई है। सो एवरी टाइम टाइम्स ऑफ इंडिया सेल्स अ न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया को हर पेपर बेचने पे 16 रुपए का नुकसान होता है, 14 से 16 रुपए का। आपको 3-4 रुपए का पेपर आता है। So now what happens? How do they make revenue? Revenue comes from the advertising which the papers do. तो अगर आप ये ad देखोगे तो Times of India front page at times it is few lakh rupees. At times, if all over India every edition we are talking about, it can go up to crores also. Research का है हमारे पास, we can do different kinds of researches, quantitative है, qualitative है, ये रिसर्च कर सकते हैं। करियर्स जो है हमारे पास टेलीविजन एंड रेडियो जर्नलिज्म में भी हैं। वी कैन बिकम न्यूज एंकर्स, रिपोर्टर्स, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफर, वीडियो एडिटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव। यू कैन बिकम अ राइटर, जर्नलिस्ट, RJs, म्यूजिक मैनेजर्स, साउंड रिकॉर्डर्स, एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर करियर्स जो कि इसके साथ जुड़े हुए हैं। मेजर कोर्सेज क्या होते हैं, कहाँ होते हैं? हमारे यहाँ बैचलर्स होती है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, बैचलर्स मीडिया स्टडीज में भी होती है, एंड बैचलर्स होती है हमारे यहाँ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशंस में भी। देयर आर मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशंस, वहां से आप कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कराती हैं, IP यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, दिल्ली में DU का अपना एंट्रेंस होता है। So there are multiple many colleges which you do. Just Google it up and you will be able to see the colleges which offer journalism, media and mass communication courses. Some offbeat careers. Okay, I'm almost reaching to the end of my presentation. तो हमारे पास हमारे कहीं एक दोस्त है हमारा, पापा CJ उसका नाम है। तो अब उसने क्या किया, उसने स्टैंड अप कॉमिक्स हैं जो हमारे उसको उन्होंने वो किया है, अपना करियर बनाया है। इंडिया के काफी अच्छे कॉमिक हैं, तो ये भी एक करियर है। फूड
क्रिटिक, फिल्म क्रिटिक्स हैं, अखबारों में भी आता है उनके, व्लॉगर्स हैं जो कि जैसे यूट्यूब पे आपके ब्लॉगर्स हैं, दे मेक टन लोड्स ऑफ मनी एट टाइम्स अगर आप सक्सेसफुल हो जाएं. यू कैन बिकम अ राइटर. जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया मॉर्निंग में मुझे पता लगा ही राइट्स. आप कोच बन सकते हैं, आप खिलाड़ी बन सकते हैं, तो स्पोर्ट्स कोच बन सकते हैं, लाइफ कोच बन सकते हैं. पॉलिटिक्स इज अनदर करियर. एक्टिंग, ड्रामा में जा सकते हैं, अपने आप में अलग लाइन है. म्यूजिक, you can go for music also. You can become an animator, special effect. आज जब मेरे से बात हो रही थी तो एक और भी बोला गया, अगर हमें जैसे अगर आप ह्यूमैनिटीज में जाते हैं तो यू कैन ऑलवेज, इफ यू लव अ सब्जेक्ट वेरी मच, यू कैन डू रिसर्च इनटू दैट. तो रिसर्च का क्या तरीका होता है, आप पहले बैचलर्स में उस सब्जेक्ट को लेते हैं, फिर आप मास्टर्स में उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, फिर आप उस सब्जेक्ट में रिसर्च करते हैं, 1 साल की एमफिल करते हैं उसे, और उसके बाद आप पीएचडी करते हैं. सो यू कैन, दैट इज अ रिसर्च करियर विच इज अवेलेबल. एंड उसके बाद आप रिसर्च, यू कैन बिकम अ इकोनॉमिक रिसर्चर, you can become an anthropology researcher, archaeology researcher, or you can become a teacher also. You can become a professor like me in an institute or in a university. Another career. अब सब कुछ खत्म हो जाए, अगला कहता है जी हमसे तो ये जो आपने बोला ना, ये सारा पढ़ने पढ़ने वाला काम है जी, हमसे नहीं होते पढ़ाई पढ़ाई, हम नहीं कर पाएंगे जी, जैसे आप पढ़ाई कह रहे हो ना, इतनी पढ़ाई तो हमसे नहीं हो पाएगी, ये भी नहीं हम करना चाहते. तो एक ऐसा करियर है जो हमेशा हर बंदे का, वो कहते हैं ना, ओपन आर्म्स के साथ स्वागत करता है, उसे हम कहते हैं, उसे मैं कहता हूँ सेल्स. सेल्स इज द करियर जो आप कभी भी कर सकते हैं. हमेशा रादर हम हमेशा अपने आप को बेच रहे होते हैं, अपने आइडियाज को बेच रहे होते हैं. सो वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी आर ऑलवेज सेलिंग. सो दैट इज अनदर करियर विच इज अवेलेबल, एंड इट डज नॉट नीड, रादर आपने चाहे आप आईआईटी से काम कर लेते हैं, आईएम से काम कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, इवन मोदी जी भी हमें ड्रीम्स बेचते हैं. So you are always selling. So if everything else fails, so sales can be an amazing career which is available to you. So that's it probably. So what is the right career for you? We will have discussions, and thank you very much for listening. So this is where Vijay, I have whatever I need to say. Thank you very much. I hope I have not taken more time than I was given. थैंक यू वेरी मच यतेंद्र पाल सिंह वीर जी. इनको सुनने के बाद तो ये लग रहा था कि हमारे जमाने में अगर कोई ऐसी काउंसलिंग मिली होती तो हम तो पता नहीं क्या क्या कर लेते. हम तो, हमारे जमाने में सिर्फ वही होता था, एक हिस्ट्री, एक पॉलिटिकल साइंस, एक इंग्लिश, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा साइकोलॉजी. तो अब लग रहा है कि इतने सारे कोर्सेज हो गए हैं. मैं थोड़ा सा समय आपका और लूँगा, और इसमें मैं बताऊँगा कि अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप डिज़ाइन में भी जा सकते हैं. तो डिज़ाइन में क्या होता है कि आप डिज़ाइन में, आपके पास इवन आजकल तो ये आ गया है कि आपको अपनी इंडस्ट्री बनानी कैसे है, ऑफिस कैसे डिज़ाइन करना है ताकि वहाँ पर काम करने में आपका दिल लगे. इसके अलावा एक लाइन और है, उसे ना, एक अभी कुछ दिन पहले मेरे को, जैसे हम एजुकेशन को उर्दू में बोलते हैं तालीम, तो तालीम की तालीम यानी कि एजुकेशन की एजुकेशन यानी कि पढ़ाना कैसे है, उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज होते हैं. पहले लोग एजुकेशन में बीएड करते हैं, फिर एमएड करते हैं. और एक अच्छी बात ये है आजकल कि जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और कॉर्पोरेट्स हैं, इन सबको अपना कुछ ना कुछ बजट रखना पड़ता है कि वो एजुकेशन के लिए या आर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ डोनेट करें. तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो बहुत सारा मतलब इसका बेनिफिट ले रहे हैं, और वो बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च कर रहे हैं, और एजुकेशन, बहुत अच्छी किताबें निकाल रहे हैं. और अगर जैसे कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज ले लूं तो मैं क्या करूंगा, फ्रेंच ऑनर्स करके क्या करूंगा, या जर्मन. उसमें भी बहुत भाई, उसको पढ़ के बहुत सारी एम्बेसीज को ये सब चाहिए होता है. इसके अलावा म्यूजिक है, इवेंट मैनेजमेंट है, तो मतलब बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं. और दूसरा, गूगल बाबा तो आपके पास है ही, अब जब चाहे आप, हमारा नंबर भी है. तो अब हम थोड़े से प्रश्न लेते हैं. बिल्कुल. और हमारे सामने जो सबसे पहला प्रश्न ये आ रहा है, एक प्रश्न ये आया है कि अगर मैं
जो लॉ है वो यूनिवर्सिटी से करता हूँ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करता हूँ, या किसी कॉलेज से करता हूँ, या मेरे को डिप्लोमा मिलता है, या मेरे को डिग्री मिलती है, उन दोनों में क्या फर्क है, आप वो बताएं। जी, मैं ना आपको एक अपने साथ ही उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मैनेजमेंट कॉलेजेस वगैरह, जैसे दिल्ली में भी कॉलेजेस के रैंकिंग होती है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैनेजमेंट एजुकेशन, बिकॉज आई एम ए प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग, आई टीच ओनली MBA स्टूडेंट्स, आई हैव बीन टीचिंग दिस फॉर लास्ट 12 साल से मैं APJ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट द्वारका में पढ़ा रहा हूँ। तो वी आर अमंग दी, अगर हम दिल्ली में देखें तो हम पहले 3-4 कॉलेजेस में आते हैं, इंडिया में हम टॉप 20 में आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इंडिया में सबसे बढ़िया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट है, चाहे वो अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ। सो अगर हम इस तरह से रैंकिंग होती है, हम अगर उनके साथ मिलाते हैं, हम 30वें 40वें नंबर में कहीं आ जाते हैं। उसी तरीके से अगर मैं लॉ यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूं, तो अगर मुझे, जैसे मेरे पास कोई बच्चा आ रहा है, वो कह रहा है कि मुझे IIM में एडमिशन मिल रही है, तो मैं आपके कॉलेज में आऊं कि IIM में जाऊं, तो मेरे लिए इसमें बिल्कुल भी हल्का सा भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। मैं उसको हमेशा बोलूंगा कि अगर तेरे को मेरे से बेहतर कॉलेज में एडमिशन मिल रही है तो आपको वहां जाना चाहिए। सिमिलरली, अगर आपको NLU में एडमिशन मिल रही है, चाहे वो दिल्ली है या दिल्ली से बाहर है, तो मेरे हिसाब से आपको NLU में जाना चाहिए बनिस्बत किसी और। So that is my take. So go for brands go very far with you. If you can get a better brand, please always go for a better brand. Because at this moment, you are not a brand yourself. You need some brands pull in order to pull you up. सर दूसरा क्वेश्चन ले लें? हाँ जी, हाँ जी। सर I hope दूसरा I have प्रश्न है answered. कि, हाँ जी, तो दूसरा प्रश्न है कि ये कह रहे हैं कि मैं BLED का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का, तो मैं इसके बाद क्या करूँ? आपने, मेरा इनसे सवाल है, आपने ये पढ़ा क्यों था? ये मेरा एक ही सवाल है, आप जो भी करें, आप इसलिए करें क्योंकि आप उसको करना चाहते हैं। आप इसलिए ना करें क्योंकि आपके दोस्तों ने वो कर रहे हैं, या आपके साथ वाले ने बोला, या मामा जी ने बोला, या चाचा जी ने बोला। आपकी लाइफ की अपनी एक ट्रैजेक्टरी है, आपने अपने रास्ते पे जाना है। तो अगर आपको लगता है कि आपको BLED के बाद अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आपको BLED कर लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें नहीं है, तो then we have to look for something else. So that is my take. करेंगे क्या ये, अब आप ही बताएं कि आपके पास किस तरह की कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। आप टेक्निकली तो एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ ही आ रहे हैं ना, तो आप या तो मास्टर्स कर लें उसमें और डीप में चले जाएं, या 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लें टीचिंग का। जी धन्यवाद। मैं तीसरा प्रश्न लेता हूं जी। तीसरा प्रश्न है, ये कह रहे हैं कि क्या मैं कॉरेस्पॉन्डेंस में ग्रेजुएशन करने के बाद IAS के लिए तैयारी करूं? बिल्कुल जी, IAS दे सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, नो इश्यूज एट ऑल। प्रश्न आ रहा जी, कि कृपया पॉलिटिकल साइंस के करियर के बारे में बताएं। अगर मैं ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में करता हूं, तो उसके बाद क्या करियर है मेरा? पॉलिटिकल साइंस के बाद आप एक तो मैनेजमेंट MBA कर सकते हैं, आप लॉ कर सकते हैं, आप मीडिया में जा सकते हैं। So अंडर ग्रेजुएशन आर्ट्स इज ऑल्सो कैन बी टेकन एज BA होना चाहिए। सो आपके एज लॉन्ग एज BA में 50% मार्क्स हैं, यू हैव 50% मार्क्स एंड अबव। अगर आपके 49.9% भी हैं, तब भी आप MBA नहीं कर सकते।
आपको 90% जगह पर ये हो जाता है कि आपको एंट्रेंस में ही नहीं बैठने दिया जाता. सो एज लॉन्ग एज आप, अगर जैसे आपने बीए पॉलिटिकल साइंस की, यू कैन प्रिपेयर फॉर आईएएस. पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट टू टेक, एंड इफ यू आर वेरी गुड एट इट, दैट इज अगेन. नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए. उसके अलावा आप पॉलिटिक्स के, आप जर्नलिज्म की तरफ जा सकते हैं. यूपीएससी मैंने बता ही दिया है. हाँ जी. जी हाँ जी धन्यवाद. विजय, अगला we can प्रश्न take. अगला प्रश्न जी. जी अगला प्रश्न है बीजेएमसी. हाँ जी. इसके बारे में, I think इसका मतलब है शायद बैचलर इन जर्नलिज्म एंड Bachelor's in BJMC is a bachelor's in journalism and mass communication courses. So हमारा मीडिया, चाहे वो हमारा प्रिंट मीडिया है, चाहे वो मेरा डिजिटल मीडिया है, चाहे वो मेरा टीवी मीडिया है, सारे के सारे खुले हुए हैं इस समय. जी सर धन्यवाद. अगला प्रश्न है जी. अगला प्रश्न वीर जी. श्योर. अगला प्रश्न ये है कि मेरे को ये बताएं कि मैं किसी एम्बेसी में कैसे काम कर सकता हूँ. I don't think I am not the right person to actually answer. एम्बेसी, जहां तक मैंने देखा है, एम्बेसी वाले अपनी नौकरियां निकालते रहते हैं. अक्सर उनकी टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में नौकरियां निकलती रहती हैं, अलग अलग तरीके की नौकरियां निकलती रहती हैं. बट सो उनको अप्लाई करें, एंड आई गेस यूजुअली मोस्ट ऑफ द एम्बेसीज आर फेयर इन नेचर. बट आई, बिकॉज यूजुअली एम्बेसी में हर तरह के काम होते हैं, तो क्या काम आप करना चाहते हैं, इट वुड डिपेंड, देन आई मे बी एबल टू. क्योंकि कंप्यूटर की नौकरी भी निकल रही है वहां पर, नेटवर्किंग की नौकरी भी निकल रही है, अकाउंटेंट की नौकरी भी निकल रही है, और करने को तो वहां पर वो कार चलाने वाली नौकरियां भी अवेलेबल हैं. तो every kind of jobs are available in the embassy. It's like any other department. जी धन्यवाद. सर अगला प्रश्न है कि क्या मैं 1 साल का फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा करके अच्छा करियर की उम्मीद कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकते हैं, एज अगर आपको डिप्लोमा के बाद आपको वो काम आ गया. अगर उस आप अच्छा डिजाइन कर पाएंगे तो डेफिनेटली आई फील यू कैन डू दैट. जी धन्यवाद. जी मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ. जी सर. ये कहते हैं कि क्या मैं ह्यूमैनिटीज की साइड से ग्रेजुएशन करने के बाद एथिकल हैकर बन सकता हूँ? एथिकल हैकर बनने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है. You start hacking, start finding loopholes in the program, start doing, hacking, ethically hacking attacks, finding loopholes in the companies, and I guess you can do that. So it does not require a degree at all. Rather, this is the advantage of आज की डेट में जो कंप्यूटर का काम है, चाहे वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग and all these things, languages, if you can deliver what you're saying that degrees are becoming redundant. So it's more about that your ability to actually, अगर आप कहते हो कि मुझे जावा में प्रोग्रामिंग आती है, या HTML में प्रोग्रामिंग आती है, मुझे डेटा साइंसेस में आता है, मुझे टैबलो आता है, या मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आई कैन राइट प्रोग्राम्स, आई अंडरस्टैंड पाइथन. सो आई डोंट थिंक you require a huge degree support. There are certification courses which you can do, and there are many free certification courses which are also available. सर एक प्रश्न ये आया है कि जो आईएएस की कोचिंग की तैयारी है वो ग्रेजुएशन कर बाद ही करें या उसके बीच में गैप डालना जरूरी है? I personally feel when it comes to IAS, असल में ना हमने अपने स्कूलों में और ग्रेजुएशन में कॉलेज के टाइम पे ना अच्छे ढंग से पढ़ाई की नहीं होती. अगर करी हो तो शायद हम ग्रेजुएशन के तुरंत बाद भी एग्जाम दे सकते हैं. वी हैव सीन इन द न्यूज, बट दैट न्यूज इज वेरी लेस, जहां पर लोग 22 साल में या 23 साल में आईएएस बन गए हैं. लेकिन अगर मैं देखूं तो मैंने यहां तक देखा है कि लोगों ने it entirely, actually it is dependent on the student herself or himself, कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने सब्जेक्ट को समझते हैं. अगर आप समझते हैं तो you can apply straight away,
आफ्टर द ग्रेजुएशन एट द एज ऑफ लाइक 9, आप 20-21 साल में आप ग्रेजुएशन करेंगे, आप उसी साल अपीयर हो सकते हैं। लेकिन जहां तक मैंने लोगों को देखा है, उनको सब्जेक्ट की उतनी समझ नहीं होती, तो इसलिए कई बार अक्सर लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही आईएएस की तैयारी करते हैं कि कम से कम एक सब्जेक्ट उनका तैयार हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में आपने मास्टर्स कर ली है, तो एटलीस्ट पॉलिटिकल साइंस आपका तैयार हो गया, आपने साथ में हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तो आपके 2 सब्जेक्ट्स तैयार हो गए। इस तरह से लोग करते हैं। जी धन्यवाद। जी अगला प्रश्न है कि मैं बीबीए और जर्नलिज्म में कंफ्यूज हूँ, तो मैं कौन सा चुनूं? सवाल अगेन मेरा, जिन्होंने ये सवाल पूछा उनसे है कि आप कंफ्यूज बीबीए से, आई टीच एमबीए ऑल द टाइम। एट टाइम्स आई फील कि बीबीए एक बड़ा वेस्ट सी डिग्री है, क्योंकि उसके बाद करनी तो आपको एमबीए ही पड़ती है। तो अगर आप थोड़ा सा ट्राई जर्नलिज्म का मारना चाहते तो मान लें, उसके बाद एमबीए कर लेना। एमबीए वाले तो बैचलर्स इन जर्नलिज्म वालों को भी एमबीए कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन चाहिए एमबीए के लिए भी। सो बीबीए का लॉजिकल कंक्लूजन एमबीए है, लेकिन अगर आपको पता है कि आई वांट टू ट्राई एंड आई वांट टू सी that whether I like graduation of journalism or mass media, whether I would like it or not, you can always explore. जी धन्यवाद सर। एक प्रश्न और है, उसमें ये कहते हैं कि मैं साइकोलॉजी से ग्रेजुएट हूँ, तो क्या इंडिया में इंटीग्रेटिव ऑप्शंस हैं कि मैं साइकोलॉजी के बाद फैशन डिजाइनिंग में या विजुअल मीडिया में जा सकूं? डेफिनेटली जा सकते हैं। साइकोलॉजी के बाद आप कंज्यूमर साइकोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। डेफिनेटली यू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर वेल एंड इट कैन हेल्प यू इन डिजाइनिंग। अनदर थिंग, अगर आप ऑन द अदर एंड अगर आप साइकोलॉजी को ही आगे लेके चले, हमारे पास आज समय उतना नहीं था तो हमने उठाया नहीं है, देन देयर इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप साइकेट्री की तरफ जा सकते हैं। तो हमारे पास बड़े सारे ऑप्शंस। So we have, NIMHANS and WIMHANS, that is National Institute of Mental Health and Sciences. Those are also available. लेकिन yes, consumer psychology and organization psychology की तरफ आप definitely जा सकते हैं। consumer को आप understand करते हैं और उन psychological skills जो आपने upgrade किए हैं उनको आप बताते हैं। yes. जी धन्यवाद सर। एक प्रश्न ये आया है कि यूपीएससी सिर्फ आईएएस के लिए ही एग्जाम करवाती है या उसके अलावा भी कोई और एग्जाम भी करवाती है? मैंने बताया था यूपीएससी कई सारे एग्जाम्स कराती है, लेकिन जो आईएएस एग्जाम होता है जिसे सिविल सर्विसेज एग्जाम कहते हैं, वो 23 सर्विसेज के लिए होता है। 23 सर्विसेज व्हिच आई मेंशन्ड ड्यूरिंग माय टॉक, व्हिच द प्राइमरी सर्विसेज आर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस एंड रेस्ट आर द डिफरेंट सर्विसेज व्हिच आर अकाउंट्स, रेलवे एंड रेवेन्यू एंड अदर सर्विसेज। जी धन्यवाद जी। अगला प्रश्न है कि क्रिमिनल जस्टिस या क्रिमिनोलॉजी, इसमें क्या स्कोप है? अगर मैं इसमें अगर हम देखें तो सारा 90 देयर आर 2 तरह के हमारे जो लिटिगेशन हो रही है, उससे जैसे वी कैन से दैट क्रिमिनल एंड सिविल। सो 2 पार्ट्स में हमारा लॉ अगर बांटा गया है, तो क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल लिटिगेशन हमारी काफी इंपॉर्टेंट है। लड़ाई झगड़े करते रहते हैं हम, तो जब लड़ाई झगड़े वाले तो क्रिमिनल जस्टिस में ही आ रहे हैं, तो काफी अपॉर्चुनिटीज इस समय हमारे पास उसकी भी है। रादर मेजॉरिटी जो लॉयर हैं, जो पुराने वाले लॉयर हैं, अक्सर अगर आप देखें तो डिवाइडेड है क्रिमिनल एंड सिविल में। तो सर एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे मैं एलएलबी करता हूं, तो उसके बाद मैं अपनी फील्ड कैसे चुन सकता हूं कि मैं क्रिमिनल करूं या कोई और किस तो मेरे ख्याल से आपको एलएलबी जब आप करोगे, उसी दौरान जब आप एलएलबी करते समय आपको पता लगेगा कि आपको किसमें ज्यादा मजा आ रहा है। So whether you're liking the torts, you're liking the contract law, you're liking the patent law, you're liking what are you liking? You're liking research. So जो भी पसंद आ रहा है, अकाउंट्स लॉ है आजकल, कंपनी लॉ काफी चल रहा है हमारे पास। So हर तरह से जिसमें आपको ज्यादा मजा आने लगेगा, आप उसकी तरफ चल जाइए। So don't worry about the specialization at this stage. Do the law, understand what you like more about in the law field. जैसे अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स है कंफ्यूज होते हैं कि मुझे मार्केटिंग लेनी है, फाइनेंस, एचआर या
international business या operations. So once you do it, you start liking it. आप internships करते हो, आप एक काम कीजिए, आप 2-4 दिन 5 दिन अलग अलग lawyers के पास जाके देखिए किसके पास आपको ज्यादा मजा आ रहा है, and that would be a good start to do. Start interning, start helping a lawyer. सर अगला प्रश्न है कि मैं लॉ करने के बाद जुडिशरी कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ? जुडिशरी के एग्जाम्स हैं एंड एग्जाम पास करने पड़ेंगे आप. सो देयर इज अ जज एग्जाम ऑफ जुडिशरी एग्जाम. हर स्टेट का अपना जुडिशरी एग्जाम है, वो LLB वाले आप दे सकते हो एंड एनी टाइम, एंड यू कैन अपीयर फॉर दैट. वो डेट्स निकलती रहती हैं. बहुत बहुत धन्यवाद. अभी तक तो इतने प्रश्न आए थे जिनका हमने जवाब दिया है, तो अभी इसके आगे तो कोई प्रश्न नहीं है मेरे पास. मेरे पास मुझे चैट में दिख रहे हैं कुछ क्वेश्चन कि टेल मी समथिंग अबाउट LLB एंट्रेंस एग्जाम. सी CLAT इज एन एग्जाम, सिंपल सा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है. गो टू clat.ac.in and you will see that what you need to do. Very elementary, very basic exam. Taranpreet ji ने पूछा है कि how can I study for entrance exam of BJMC and please suggest me something for entrance posting. Okay, sorry, this is not my area. I will not be able to help you on to that. आप पढ़ाई कीजिए. आपको आज की डेट में तो जैसे इंद्रजीत विजय ने कहा that you go Google and you need assistance. There are दुनिया भर के coaching centers हैं. There are career launches, times and all. You go with the best one and do there. Judiciary के लिए yes, law is the basic degree in law is required. Sir, I want to ask that only that all I can do after completing the degree of B.Led apart from teaching, how can I upgrade my qualifications? आप masters कर सकते हैं and see that B.Led के बाद what kind of masters are available to you. सिमरन. सर ये वाला प्रश्न हमने पहले ले लिया था. जी. अच्छा, तो एक तो मैं अभी तक तो मेरे ख्याल से हम जितने प्रश्न आए हैं हमने उनका जवाब दिया है. अगर कोई फेसबुक पर पेज हो, मैं हरप्रीत सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वहां पर कोई हो या यूट्यूब पर कोई आया हो तो वो ले सकते हैं ताकि वीर जी उनका जवाब दे सकें. एक बात मैं सारे बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपना 100% दीजिए पढ़ाई में. नंबरों की चिंता, देखिए नंबर चाहिए लेकिन नंबरों की चिंता पहले नहीं करनी है कि आप इसी चिंता में आप बीमार हो जाएं कि मेरे नंबर कितने आएंगे या नहीं आएंगे. आप अपनी पढ़ाई कीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, 100% दीजिए. नंबर आपके पीछे आने चाहिए, आपको नंबरों के पीछे नहीं जाना. बिल्कुल. दूसरी बात, and I personally felt Indrajit Vijay that numbers are, I have seen students in my life. I have taught for many years. First time I taught was in 97. So कई नंबरों से जिंदगी कैसे बीतेगी शायद नंबर डिसाइड नहीं कर पाएंगे आपकी. एंड अगर आपने उस समय नंबर क्यों अच्छे आए, शायद आपने अच्छी मेहनत कर ली इसलिए नंबर आपके ज्यादा आ जाए, लेकिन बाद में आप मेहनत करने से हट गए तो आपकी जिंदगी में कई बार आप पिछड़ जाते हैं या देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स. एंड कुछ लोग पहले मेहनत नहीं करते, बाद में मेहनत कर लेते हैं तो वो थोड़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं. सो देयर आर, इट्स सक्सेस व्हाट इज इन योर eyes, that is something which is important. Another question which I got was कि politics में कैसे जाना चाहिए. मेरे हिसाब से आप politics काफी अच्छा एरिया है, आप जाइए. आप जो lowest इकाई है, that is I personally feel that start working with them. Maybe your local MLA के साथ आप काम कीजिए and start working with that person, start helping others. Rest, it's a long journey. Average age of unless you have a nepotism, पापा आपके politics में है, then it's a different story. Otherwise 25-30 साल की struggle है. But yes, definitely अगर आप उसको मन से करते हैं तो आपको काम हो ही जाता है. इसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा इस विषय में और बताएं. जैसे हम बैचलर करते हैं, अंडर ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद भी क्या पढ़ाई होती है, उसके आगे भी हम पढ़ सकते हैं. लोग मतलब प्रोफेसर बनने के लिए क्या चाहिए होता है कि लोग इतनी
कितनी ज्यादा हम पढ़ाई कर सकते हैं? देखिए मेरा ये है कि अगर आपको, फॉर एग्जांपल, आई लव टू रीड, आई लव टू स्टडी, आई लव being in the classroom. Most of the time people are become teachers by default. उनको लगता है कि यार बड़ा आसान सा ही काम है. It's not that easy, one. But if you're passionate about a subject, then you must do that. For you start, for example, अगर हम sociology की बात करते हैं, you start with the undergraduation in sociology or political science or anthropology, or for that matter, any bachelor's. Then you do a master's. Then 90% of the time there could be a possibility of an MPhil course for a year. और यहाँ कई बार हमारे पास master's से सीधा PhD की option होती है. So you do a PhD program and see, and I personally feel that अगर मैं कम्युनिटी की बात करता हूँ तो हमारे को कम लोग हैं जो कि काफी अच्छे हमारा एंटरप्रेन्योर्स, वी आर वेरी गुड एंटरप्रेन्योर्स, काफी अच्छा काम करते हैं. ओवरऑल वी हैव डन वेरी वेरी वेल. बट I personally feel that when it comes to scholars or making an impact in the knowledge development, we have a very lesser contribution. So I would always request kids to come up, take interest in these subjects. If you are good at into it and you are passionate about a subject, then tomorrow you can become a professor of that. And it's not as good as an MNC career in business, but it is a decent career. सर, एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है, शायद जी. बच्चों को अच्छा लगेगा कि जैसे हम एक विषय चुनते हैं, हम एक ये सोच के चलते हैं कि हमें जिंदगी में ये बनना है, तो क्या इसके साथ हमें कुछ ऐसा भी सोच के रखना चाहिए कि अगर हम ये नहीं बन पाए तो ये बन जाए? आपने ना ये मेरा बड़ा दिल का, दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लोज टू माय. I'll give you जितने लोग हैं यहाँ पर कम 28-30 लोग हैं जो इस समय मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं. So after doing my MBA, I worked for VPL and Videocon for a few years. Then I went and taught founded an MBA program in Garhwal Himalayas. That is Garhwal University है वहाँ पर. अगर हम हेमकुंड साहब जाते हैं तो रास्ते में आती है. Then I did my PhD. My PhD is in relationship marketing. So I went to New York. I created a relationship marketing program for a mortgage bank. Then I did little bit of, I lived in Canada for a few years and did a hotel, bought a couple of hotels and did that. Then came back, worked for a company called Lintas Advertising Company. I was director of executive development with them. And last 12 साल से पढ़ा रहा हूँ. So कई बार मुझे लगता है कि as kids हम बड़ा परेशान हो जाते हैं. जिंदगी बड़ी मैराथन की तरह है. हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप ज्यादा परेशान ना हो. But you have to keep yourself current. ये नहीं है कि वो कहते हैं ना, देयर इज अ स्टीफन कोवी ने एक किताब लिखी थी 7 हैबिट्स ऑफ अ वेरी हाईली इफेक्टिव पीपल. तो 7वीं हैबिट है शार्पनिंग द सॉ. तो भाई अपनी जो आ रही है हमारी वो तीखी रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहें. एंड एट टाइम्स आई फील दैट आपने ऐसी, जैसे मैं जिंदगी में ऐसी जगह पर रहा हूं जो मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, या मुझे पता भी नहीं थी ऐसी जगहें एग्जिस्ट भी करती हैं शायद व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, बट आई डिड दैट. सो life is very long. You have lot many permutation and combinations with work. And I personally feel that even if I've seen many people, like I was talking to you, giving you an example of Papa CJ. Papa CJ is one of India's best stand-up comic in English. He's an Oxford MBA. So what I'm saying is कि जिंदगी आपको कहाँ लेके जाएगी, कहाँ आपको सक्सेसफुल बनाएगी, at times we don't know. So life is a marathon. वो कहते हैं आप अपना काम करते रहो. Rest, leave it to Babaji, and probably he'll bless you with all the wealth, fame and happiness. जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. हमारे रिलेशन में एक हैं, पहले उन्होंने MBBS की, फिर MD की. MD करने के बाद उनको लगा कि मैं तो डॉक्टर बनने के लिए हूँ ही नहीं, मैं तो टीचर हूँ. तो आजकल वो जो बच्चे MBBS में एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उनको पढ़ाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे हमने प्रश्नों के उत्तर दे भी दिए हैं और अभी आगे हमारे सामने प्रश्न भी नहीं है. तो मैं हरप्रीत सिंह वीर जी को देने से पहले और वीर जी को एक ही बात कहूँगा कि अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपके पेरेंट्स आपको नहीं पढ़ने दे रहे हैं तो आप
लड़ाई करिए पढ़ाई करने के लिए। और पढ़ाई क्यों करनी है? समाज बदलने के लिए। अगर आप किसी भी व्यवस्था से खुश नहीं है, आपको ये लगता है कि मेरे को यहाँ पे न्याय नहीं मिला, या ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए या वैसे होना चाहिए, तो आप इतना पढ़िए कि कल को उस कानून को बदल सकें, उस समाज को बदल सकें, उस व्यवस्था को बदल सकें। इसी के साथ मैं अतिंदर पाल सिंह जी का बहुत-बहुत वीजी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया और सारे बच्चों को गाइड किया। मैं चाहूँगा कि हरप्रीत सिंह वीर जी आएँ और मैं सभी Another thing, Indrajit Virji, I want to say here is there are multiple, इस समय बहुत सारी सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जो कि इस समय फ्री अवेलेबल हैं बिकॉज ऑफ द कोविड। हम सब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है सब बच्चों से कि ऐसे कोर्स करो जो आपने अभी तक सोचे नहीं है, कि जो आपसे बिल्कुल अलग है। यू नेवर नो, मे बी यू स्टार्ट लाइकिंग इट। So language courses are there. Just Viji was talking about. See if you could learn Spanish. Go to Coursera. There are multiple courses. Rather, I wrote a post on LinkedIn. If I could, I would share here before the session ends that this is available, and you can go and there are a list of courses which are available to us, which you can always see. So the point I am trying to make is that always make a good use of the time which is available to us. So kids who are studying, आप नई लैंग्वेज सीख लें, आप कोई पाइथन पे कोर्स कर लें, आप ड्राइंग कोर्स कर लें, आप पोएट्री कोर्स कर सकते हैं. See, something which you have not done till now, please try exploring those, and maybe you will find a new passion there, and which might become a career. जी, लैंग्वेज से मेरे को याद आया कि एक क्वेश्चन इसका भी होता है कि भाषा के ऊपर भी, भाषा विज्ञानी का भी, वो भी एक ऑप्शन है। Definitely. See, options are multiple options are available. Yes. So I guess we've taken more time. मैं अतिंदर, माफी चाहता हूँ अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो। नहीं, that's fine जी। नहीं। मैं अतिंदर पाल सिंह वीर जी का और इस संस्था का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, रीप व्हाट यू सो। और इसीलिए मैं ये इसलिए धन्यवाद करता हूँ क्योंकि हम ये समय का फ़ायदा उठा रहे हैं और बच्चे हमारे साथ हैं, और जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो अलग-अलग जगह से आते हैं। कोई उन्नाव से आता है, कोई आउट ऑफ इंडिया से आता है। तो ये एक ज़ूम मीटिंग का फ़ायदा भी है कि अगर हमें कहीं जाना पड़ता तो हम कितना सारा पोल्यूशन फैलाते, गाड़ी से जाते, अब ज़ूम पर बैठकर मीटिंग कर रहे हैं और आप बच्चे भी अपने समय के अनुसार इसको देख पा रहे हैं। तो मैं वीर जी का और सभी दर्शकों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।